Hello, good morning, all of you. I hope you all are good. And we are discussing about chapter 3 of civics. And in this chapter, we will come to know about all the system of elections of our country. So, the name of the chapter is Electoral Politics. So, how or what is the process of elections, how elections are important, why elections are important, and which elections are known as democratic election. These all the things we have discussed. We were discussing about the topic, is it good to have political competition? मतलब political competition का होना किस तरीके से अच्छा है. So we were discussing about this. So half of the things we have already discussed. So in this we have discussed that what are the drawbacks. Drawbacks means we can say how these competitions are not good for the country. Means what are the negative aspects of these electoral competition. So we have discussed about all the things which were against this system. So we have seen that there are many demerits or drawbacks in to be कंपटीशन. मतलब कंपटीशन का होना, एक साइड में हमने एक फेज को डिस्कस किया था जिसमें हमने पाया कि देर आर मैनी ड्रॉबैक्स. So drawbacks like parties and candidates use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long term, means long term policies cannot be formulated, because through election we find that there will be the changes. After 5 years when the policies are formulated, after 5 years if any other person come, so he will again change this. So these all the things we have discussed. Today we have to start from here, our constitution makers. So be ready for that. Our constitution makers were aware of these problems. You may ask, क्या जब ये पता है हमको कि ये इस तरीके के कंपटीशन को रखने से देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, तो क्या होगा? तो क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको ऐसा नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम्स आगे आएंगी? नो, इट वॉज नॉट देयर. दे वर अवेयर फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स. उनको पता था कि ये अगर हम कंपटीशन रखते हैं तो आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम आएगी. Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leader. They were aware, but then also they have kept this system in our constitution. So there will be means more benefits in comparison to demerits. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मेरिट्स ज़्यादा हैं in comparison to demerit. Let's see. They did so because this system works better in the long run. क्योंकि ऐसा क्यों किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, क्यों इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि उनको पता था कि ये सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू सर्व देम. और ऐसा कंपटीशन होने से क्या होगा कि लोग मोटिवेट होंगे कि उनको बाकी लोगों को सर्व करना चाहिए, पब्लिक को सर्व करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए. पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ. अब जैसे कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में होता क्या है वो भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर. अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इन पॉलिटिकल लीडर्स को पूरे वर्ल्ड में मोटिवेट किया जाता है. मोटिवेट किस तरीके से कि इफ़ दे आर डूइंग गुड वर्क दे विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. They want to remain in power or get power and positions for themselves if they will do good work. क्योंकि अगर हम किसी को 5 ईयर के लिए लीडर चुनते हैं और हमको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अगेन वी आर इन कैटेगरी टू गिव सपोर्ट टू दैट पर्सन. तो हम फिर से सोचते हैं कि ये इसने अच्छा काम किया है एंड ही शुड विन अगेन. सो दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. क्योंकि सर्व करने से क्या होगा, अगर हम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, तो
लीडर को क्या प्रॉफिट मिलेगा कि उसकी वो पावर मेंटेन रहेगी, उसकी पोजीशन मेंटेन रहेगी. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really. अब इसके अलावा दूसरे साइड में क्या होता है कि दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. अब उनको ये नहीं पता है, मतलब ये जो लीडर्स हमारे इलेक्ट होके आते हैं उनको ये नहीं पता है कि हमारा मतलब क्या हम काम करें, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. ऐसा करने के लिए उनको कौन सा काम करना चाहिए जिससे लोग उनसे सेटिस्फाइड रहें. और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब लीडर्स हमारे अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ जो वो अच्छा करते हैं वो पीपल को पसंद नहीं आती है. मीन्स देयर आइडियाज़ डू नॉट मैच विद ईच अदर. क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट सपोज इफ़ ही मैच, if both things do not match, suppose if government is making any policy and that is not accepted by us, अगर वो हमारी उस आइडिया से मैच नहीं करती है तो दैट विल बी यूजलेस फॉर अस. एंड इफ़ दैट विल बी यूजलेस आफ्टर डूइंग अ हार्ड वर्क बाय अ लीडर, सो दैट लीडर विल नॉट बी इलेक्टेड बिकॉज पीपल मीन्स वी विल से दैट दिस पर्सन इज नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू आर विश. मतलब जैसा हम चाहते हैं ये जो लीडर है हमारा उस तरीके से काम नहीं कर रहा है. तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, दिस क्वेश्चन अराइज दैट इस कंडीशन को हम कैसे डील कर सकते हैं. So how can we deal? We can deal with the one ways to try and improve the knowledge and character of political leader. एक पॉलिटिकल अच्छा पॉलिटिकल लीडर होने के लिए कैसा करेक्टर होना चाहिए, कैसी नॉलेज होनी चाहिए, इसको हमको क्या करना है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. और दूसरे साइड में जो एक रियलिस्टिक वर्ड में होता है, रियलिस्टिक वे में होता है कि एक हम ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स को रिवार्ड किया जाए. इफ़ दे आर वर्किंग वेल देन दे शुड बी रिवार्डेड, एंड इफ़ दे आर नॉट वर्किंग वेल, दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, दे शुड बी पनिश्ड. मतलब अगर रिवार्ड के रूप में हम क्या कहें कि अगर उस पार्टी ने अच्छा काम किया है तो देयर आर चांसेस दे मे विन अगेन, तो ये उनके रिवार्ड की तरीके से हो जाएगा. बट इफ़ दे हैव नॉट वर्कड प्रॉपरली सो दे मे बी पनिश्ड बिकॉज दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल. द सिंपल आंसर इज द पीपल. दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज. और यही मतलब है कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो है यही काम करता है. रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड. अब देखिए अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. अभी तक हम डीमेरिट सारी पढ़ चुके हैं, अब आज हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स. तो मेरिट क्या है कि अगर पर्सन अच्छा काम करेगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा और नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा. The second thing, regular electoral competition provides incentive to political parties and leader. तो इलेक्टोरल मतलब ये जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद होते हैं, तो इनसे इन लीडर्स को, इन पार्टीज़ को क्या है टाइम टाइम पे इंसेंटिव मिलते रहते हैं. दे नो दैट इफ़ दे रेज इशूज़ दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड. मतलब इनको पता है कि हम अगर ऐसा इशू कोई रखते हैं जो लोग चाहते हैं तो देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज़. सपोज़ अगर हम आजकल बात करें महंगाई की, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टोमेटो के, पोटैटो के, अनियन के. तो इस कंडीशन में अगर कोई पार्टी आती है और वो पार्टी हमारे सामने ये प्रॉब्लम रखती है कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनी तो इस मतलब महंगाई को मैं कम करूँगा, तो क्या है ये हमारा अटेंशन वो पार्टी ज़्यादा ड्रैग करेगी. तो सेम इज़ हियर ऑल्सो दैट पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज फॉर दैट पार्टी. अब वो जो ये रेज्ड इशू हैं, जो मतलब करंट इश्यूज़ हैं, अगर इनको लेकर कोई भी बात करता है तो उसमें क्या होगा कि विक्ट्री के चांसेस बढ़ेंगे. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again.
लेकिन अगर ये फेल होते हैं अपने वोटर्स को सेटिस्फाइड करने में, अपने कॉमन पब्लिक को सेटिस्फाई करने में, तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। फाइन। So if a political party is motivated only by a desire to be in power, then it will be forced to serve the people. तो अगर किसी पार्टी को मोटिवेट किया जाता है ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, अगर वो मतलब ऐसी डिज़ायर रखती है, ऐसी इच्छा रखती है कि वो पावर में रहे, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल. So what will happen? It can be compared with the market. How? Even if a shopkeeper is interested only in his profit. इसको हम एक शॉपकीपर से कंपेयर करते हैं लीडर को, कि अगर एक शॉपकीपर अपने सिर्फ प्रॉफिट में ही इंटरेस्टेड है कि कैसे भी मुझे प्रॉफिट हो किसी चीज़ को लेकर, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ही शुड प्रोवाइड गुड सर्विस, ऑल द गुड थिंग्स टू द कस्टमर. इफ़ ही इज़ एबल टू डू सो देन he will get profit also, but if not, he will not be profitable. So here also if he does not, the customer will go to some other shop. अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छा काम नहीं करती है तो वोटर्स विल नॉट गिव वोट टू दैट पार्टी, दे विल गो एंड गिव वोट टू अदर पार्टी. तो जैसे अगर शॉपकीपर अच्छा सामान हमको नहीं देता है तो एक बार तो हमने खरीद लिया, बट नेक्स्ट टाइम वी विल गिव प्रिविलेज टू एनी अदर शॉप. So similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. मतलब हमने देखा कि we have seen that some demerits are also there, but finally we found that it helps to force political parties leader to serve people, कि anyhow they are forced to do good work for the leaders and to provide better facilities too. Now we will discuss what is our system of election. हम क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन का सिस्टम हमारी कंट्री में क्या है. So before knowing in detail in that, we should get to know and we should revise once again what we have studied. Firstly we should know that how these elections are held. So as India like big countries, this is divided into different constituencies. अब देखिए एक इलेक्शन का एक सेंट्रल लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है. सेंट्रल लेवल के इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा का इलेक्शन, और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा या असेंबली इलेक्शन. क्लियर. अब क्या करते हैं कि इन दोनों में, मतलब अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें या हम बात करें इस स्टेट लेवल की, तो ऑन बोथ वी फाउंड दैट होल कंट्री और होल स्टेट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. पूरी कंट्री को या पूरी स्टेट को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं. और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जिस पार्टी के मेंबर हर एक मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर जीतते हैं वही पार्टी फॉर्म करती है प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. लेट्स सी व्हाट इज़ इन डिटेल. सो कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? वी हैव सीन ऑल द थिंग्स, we have seen the process. Now can we say that our election are democratic, means Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. So before going or before declaring about this, we know that elections are मीन्स व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. हम पे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इलेक्शन जो हमारे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं. तो पहले हम ये जानें कि हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसेस क्या है. सो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर. हर 5 ईयर के बाद में लोकसभा मीन्स वी आर टॉकिंग एट सेंट्रल लेवल, विधानसभा मीन्स वी आर टॉकिंग एट स्टेट लेवल. तो हर एक 5 ईयर के बाद में
इलेक्शन होते हैं दोनों लेवल पे। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जो इलेक्शन होते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम टाइम होते हैं, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डे। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ये इलेक्शन, वी आर डिस्कसिंग फर्स्टली अबाउट ऑन सेंट्रल लेवल, तो या तो सेम डे में होते हैं या तो कुछ दिनों के अंदर ही सारे इलेक्शन कुछ टाइम पीरियड में 15 डेज में या 1 मंथ में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। मीन्स देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्शन। अब कौन कौन से 2 टाइप, अभी हम दूसरा भी पढ़ ले फिर बताते हैं। सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter we will focus on general election. तो हम जनरल इलेक्शन के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मीन्स टू से दैट इलेक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। अब वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो जनरल इलेक्शन हो गया, G is for general, E is for election and second one is by election। तो जनरल इलेक्शन के बारे में हम तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम ये जाने कि ये बाई इलेक्शन क्या है। तो बाई इलेक्शन उस कंडीशन में होता है कि जिस कंडीशन में हम मानते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब ये इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, जैसे कि हम लोगों ने बताया एक टाइम पीरियड पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि किसी भी लीडर की टाइम से पहले डेथ हो जाती है, मतलब उसका टाइम पीरियड 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसको कुछ सिस्टम की वजह से उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो सीट एम्प्टी होती है, तो दैट सीट विल बी फिल्ड। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, और इस टाइप के इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बाई इलेक्शन। सो इलेक्शंस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्शन we are aware of. The first one is general election and the second one is by election. तो जनरल इलेक्शन वी ऑल द थिंग्स वी इन डिटेल वी विल नो, बट वी शुड डिस्कस समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। Clear? I hope you this much you all understand. So in this chapter we will focus on general election, electoral constituencies. Already I have told you what is electoral constituencies, what are constituencies, but in next video we will discuss in detail of this. So thank you students, have a good day. I hope that this concept should be clear to you all. So thank you once again.